Hello, once again, welcome back to your class, and we are continue in the problem session based on the Gauss theorem. This is part 2 of the problem session, so let me continue. In the last session, we had solved 5 problems related to the Gauss theorem. Now, we are continue and started from the next problem, that is the 6th problem of session. So, the question 6 is now this one, a cube of size 16 centimeter lying with the left base along the x-axis. Electric field along the x-axis is given by, the electric field is given E equals to 500 under root x Newton per coulomb, whereas the component of field along y and z axis are 0. So this is electric field along the x-axis, along y and along z, it is 0. And what is the flux through the cube and also the charge in the cube if the left face of the cube is at 16. Coordinates of left face 16, 0, 0 in centimeter, and the side of cube is also 16 centimeter. So here in the problem we have to calculate what is the flux through the cube and also the charge inside the cube. There are 2 parts in the question, so let me consider the question. What is the question? Let this is a cube. And this is the origin. Z plane, Y plane and X plane. The electric field is given in this manner. Along Y and along Z the electric field is 0. Coordinate of this means ये जो point है इसके coordinates हैं 16, 0, 0 सेंटीमीटर और इसकी साइड भी 16 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ये फर्स्ट कॉर्नर ओरिजिन से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है और 16 इसकी साइड है. तो इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट होंगे 16 plus 16 32, 0, 0 in centimeter. So we want to calculate the net flux और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एनी क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल. तो अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा और इस वाले सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले फॉर x इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर और 16 इंटू 10⁻⁻2 in meter. So Ex is equals to the 500 and under root 16 into 10⁻⁻2, that is 500 into 4 into 10⁻⁻1. This -1 cancel by this 0 and this value is 200 Newton per coulomb. Area of face of cube, एरिया जरूरत पड़ेगा तो वो भी निकाल लेते हैं. एरिया कितना होगा? साइड 16 है, 16 इंटू 10⁻⁻2 ये साइड है और इसका स्क्वायर दैट इज 256 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. तो फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट साइड, द फ्लक्स लेफ्ट साइड फेस माइनस, माइनस इसलिए या माइनस नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 5L EA cos 180 degree. You can see here the direction of electric field for this left face is this. एरिया वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे
एंगल बिटवीन ई एंड डी एफ इज 180 डिग्री, और एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड का कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फाई एल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 एंड एरिया इज दिस 256 into 10 power minus 4 by multiply we have 2 multiply by 256 512 2 0 reduced by the power 10 to the power minus 2, that is 5.12 Newton meter square per coulomb. This is the flux through the left side. For x equals to 32 सेंटीमीटर और 32 इंटू 10 पावर माइनस 2 इन मीटर, ई एक्स इक्वल्स टू 500 अंडर रूट 32 इंटू 10 पावर माइनस 2. इट कैन बी रिटन एज 500 इंटू 32 फैक्टराइज in terms of 16 into 2, that is 4 into 10 power minus 1 root 2, or now this value is, this 10 power minus 1 is again cancelled, this is 200 root 2, and the area of this is again same, this is 256. एक ही क्यूब के सरफेसेस हैं तो एरिया सेम होगा, एरिया इज 256 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर. द फ्लक्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें फिर से हमें कोई यूज करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ई ए cos 0 डिग्री. इस डायरेक्शन के, इस सरफेस के लिए, राइट साइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डी एफ भी उधर ही है, एरिया वेक्टर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ ई इज 200 रूट 2 एंड एरिया इज 256 इंटू 10 पावर माइनस 4. This value is again 256 multiplied by 2 is 512 and 20 reduced by the power, that is 512 root 2 into 10 to the power minus 2 or 5.12 root 2 Newton meter square per coulomb. This is left hand. अब नेट क्यों, नेट फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो नेट फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां नोटिस करते हैं. नेट फ्लक्स फाई इक्वल्स टू फाई एल प्लस फाई आर. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को ऐड कर देते हैं. तो फर्स्ट वाला क्या था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का था 180 था, 180 का मतलब नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अगर यूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड का माइनस 5.12 और राइट हैंड साइड का 5.12 रूट 2, ये पॉजिटिव है. यहाँ से अगर टर्म कॉमन लेते हैं तो 5.12 इज कॉमन, रूट 2 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू. सो वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, और व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, रब करना पड़ेगा आई थिंक सो. इतना स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं इस पूरे पार्ट को. आगे का पार्ट मैं बताता हूँ आपको, इसको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा. So this value is phi e is equals to phi e, the net flux is 5.12 under root 2 means 1.414 minus 1, that is 5.12 into 0.414. okay, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा. जो नेट होगा 2.12 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा. This is 2.12 Newton meter square per coulomb. This is the final and the second part of the question. And phi e is equals to net charge enclosed divided by epsilon naught. ये तो गॉस थ्योरम होती है, तो नेट चार्ज भी पूछा है क्वेश्चन. तो Q net equals to phi e into epsilon naught, that is phi e is 2.12. epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू देख लेते हैं. 8.85 2.12
phi is 5.12 2.12. This is 28.32. Coulomb. This is the value of charge. So you can note down this value also. Now we are moving toward the next question. 7th question. Powers are here. 10 to the power minus 12, that is 2.83 into 10 to the power minus 11 coulomb of the charge. Let charge and इसको भी स्क्रीन पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए. Now the next question, number 7. Electric field in the given figure is directed along x-axis and given by Ex equals to, question 7. Ex is given 5ax plus 2v, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. A and B are constant. A equals to, given 10 Newton per meter coulomb and V is given 5 Newton per coulomb. Calculate the electric flux through the cube, the net charge enclosed within the cube. और एक cube given है, ये cube given है. Again this type y, z and x. This is the origin and the side of this cube is given 10 centimeter. तो दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं हमें, फ्लक्स कैलकुलेट करना है और नेट चार्ज कैलकुलेट करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह. तो देखते हैं, सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं. फ्लक्स ई की पहले वैल्यू गिवन है तो इनको कोई नेम दे देते हैं, लाइक दिस इज m एंड दिस इज n. फॉर फेस m x इक्वल्स टू कितना होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन पे जस्ट ये फेस, तो x की वैल्यू 0, x इक्वल्स टू 0, देन ex इक्वल्स टू 5, a is 10 into 0 plus 2v is 5, that is this term is 0 and this is 10 Newton per coulomb. Area of the base is 10 centimeter side given है, 10 into 10 to the power minus 2 meter in square. This is 10 to the power minus 1, that is 10 to the power minus 2 meter square. The electric flux through the face m, लेफ्ट हैंड साइड का है तो फाई एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. क्या होगा, ई ए कॉस और नॉर्मल आउटवर्ड ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा. तो क्या होगा, माई ई ए कॉस 180 कॉस थीटा. यहाँ वैल्यूज पुट करिए, ई इज 10, ए इज 10 to the power minus 2 and cos 180. This is 10 to the power minus 1, that is 10 to the power minus 1 or minus 0.1 Newton meter square per coulomb. This is the electric field from the left hand side.
एंड फॉर फेस एन एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 0 से लेके 10 सेंटीमीटर और 10 इंटू 20 मीन्स 10 की पावर माइनस 1 मीटर, दैट इज 0.1. Ex if phi value of a is 10, value of x is there 10 to the power minus 1 plus 2 into b is 5 again. So this is 10 is cancel out, 10 plus 5 this is 15 Newton per coulomb, and the phi r is equals to EA cos theta. E is 15, A is 10 to the power minus 2 meter square, और cos theta is cos 0 that is 1. ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगी 0.15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. नेट फ्लक्स की बात अगर होगी तो फाई ई इक्वल्स टू फाई एल प्लस फाई आर. फाई एल इज नेगेटिव 0.1, दिस इज 0.1 एंड प्लस 0.15 ऐड करते हैं 0.15 0.10 दिस इज नेगेटिव 5 एंड 0 दिस इज 0.05 दैट इज 5 into 10 to the power minus 2 Newton meter square per coulomb. This is the electric flux. This is the first part of question. So you can again note down this part by watching the screen. Now the second part of the question. इतना अंडरस्टैंड हो गया? Second part is the net charge, because phi e equals to q net upon epsilon naught. The q net is equals to phi e into epsilon naught. Phi e is given 5 into 10 to the power minus 2 and epsilon naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. I multiply 10 to the power minus 40, that is 4.42 into 10 to the power minus 13 coulomb of the charge. इतना चार्ज इस ट्यूब में इनक्लोज होगा. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे. Now the next problem is 8th. So in the 8th problem, the 8th question is the electric field component in figure. पहले तो फिगर बनी हुई है इस क्वेश्चन में. Y Z origin X और ये क्वेश्चन में डायग्राम है. द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट फिगर आर ई एक्स इक्वल्स टू इफ गिवन अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 ई वाई एंड ई जेड आर 0 एंड अल्फा इफ गिवन 800 Newton per coulomb meter to the power half. Consider the cube shown in the figure. Calculate A, the flux E through the cube and the charge within the cube. A is 0.1 meter. A is given 0.1 meter. यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन की तरह कंडीशन है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो टोटल फ्लक्स के लिए पहले हम देखते हैं. फॉर द लेफ्ट फेस Ex is equals to
alpha is given 800, x to the power half means अंडर रूट x, और यहाँ x की वैल्यू इस वाले सरफेस के लिए कितनी है, जितना ये a है, जो a है वही तो x होगा, x एक्सेस पे डिस्टेंस इस वाले फर्स्ट सरफेस की, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.1, इसको हम ऐसे लिखें अंडर रूट 0.1, तो इसका मतलब होगा 800 अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 10। मैं इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 800 रूट 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रूट 10 और डिवाइड 10, दिस इज 80 रूट 10, और इसको ऐसा रहने देते हैं 80 रूट 10 न्यूटन पर कूलम। एरिया ऑफ फेस अगर हम कैलकुलेट करें तो साइड कितनी है a, तो a का मीन्स 10 टू द पावर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस 0.1 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया वेक्टर से इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मीन्स एंगल इज 180, दैट इज EA cos 180 degree. Now E is this 80 root 10, area is 10 to the power minus 2, 180 is minus 1, और रूट 10 की वैल्यू आई थिंक आपको पता होगी 80, रूट 10 इज 3.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये निगेटिव वैल्यू है। अगर हम चाहें तो एक जीरो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक जीरो यहाँ से रिमूव करें तो -1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, या फिर इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तक एक जीरो पॉइंट के बाद ये, इसको 10 टू द पावर माइनस 2 अगर शिफ्ट कर दें तो ये 2.52, फर्स्ट देखिए 80 रूट 10 था, रूट 10 की वैल्यू 3.16, 80 मल्टीप्लाई बाई 3, मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया 8 से, ये वैल्यू मिल गई, आफ्टर 2 पॉइंट्स लग गए, और ये 10 टू द पावर माइनस 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, और नेगेटिव ये वैल्यू है ही है, तो ये कितनी हो गई 1 2 हमने शिफ्ट कर लिए हैं, और 2 पावर्स और शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो 2.5 नेगेटिव 2.52 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द लेफ्ट फेस। अब राइट के लिए करते हैं, फॉर राइट फेस x इक्वल्स टू 2a हो जाएगा, और 2a का मतलब 0.2 मीटर हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। EX 500 सॉरी अल्फा इज 800, x की वैल्यू इस वाले सरफेस के लिए 2a के इक्वल है, दिस अंडर रूट 2 इंटू 2/10 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 800, और ये 2/10 1/5 मीन्स अंडर रूट 5, रूट 5 से मल्टीप्लाई रूट 5 से डिवाइड करें तो ये होगा 8 इक्वल्स टू 800 रूट 5 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 160 रूट 5, और एरिया इज अगेन सेम, सो 5r इज EA cos 0, इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, एंगल 0 होगा, तो EA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 160 रूट 5, एरिया इज दिस 10 टू द पावर माइनस 2 and cos is 1, this is 1.6 into 2.26, which is the value of अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.26 मल्टीप्लाई बाई 1.6, this is 3.6, this is 3.616 न्यूटन मीटर स्क्वायर
per coulomb. This is the value. So the net flux that is phi E equals to phi L plus phi R. phi E is negative. अगर हम एक डिजिट की बात करें तो इसको 2.5 यूटिलाइज कर लें, अप्रॉक्स इसको माइनस 2.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिखें और इसको अप्रॉक्स 3.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो ये फाइनल होगा माइनस 2.5 प्लस 3.6 minus 1.5 1 2. This is 2.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. दिस इज द फ्लक्स. चार्ज इनसाइड भी हमें कैलकुलेट करना है. Sorry. 3.6. No, it is 2.5. 2.5 means 1.1. This value is 1.1. अब चार्ज भी कैलकुलेट करना है. देखते हैं, ये स्क्रीन पॉज करके फिर से नोट करेंगे. नेट चार्ज because phi E equals to Q net upon epsilon naught. Q net equals to phi E into epsilon naught. Phi E is 1.1, epsilon naught is 8.85 into 10 power minus 12, that is 8.85, 1.1, 588, 588. So this is 9.735 into 10 to the power minus 12. 9.735 into 10 to the power minus 12 coulomb. This is the charge. So this is the 8th question. Now the 9th question is. इसको भी स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे. Now our next question, 9th question. An electric field is uniform and it is given that question 9 Ex equals to 200 I cap for x is greater than 0. Ex equals to minus 200 I cap for x is less than 0. ये given है क्वेश्चन में. A right circular cylinder of length 20 centimeter. and radius है 5 सेंटीमीटर. ये कोई सिलेंडर है जिसकी लेंथ और रेडियस गिवन है क्वेश्चन में. with its center at origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equals to 10 and the other face is x equals to minus 10. What is the, इसमें 4 पार्ट है क्वेश्चन में. फर्स्ट, what is the net outward flux through the each flat face. तो जो कंडीशन है क्वेश्चन की तो उसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं. क्या है तो ये है, दिस इज अ सिलेंडर, इसकी लेंथ गिवन है ओवरऑल 20 सेंटीमीटर और ये जो इसकी एक्सेस है इसका सेंटर ये है जो कि ओरिजिन अज्यूम किया गया है और इससे 10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 10 सेंटीमीटर राइट साइड. तो दिस इज लेस देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0. एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेफ्ट हैंड साइड में है, ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड में. तो इसके लिए इसके दोनों, इस वाले को लेफ्ट और इस वाले को राइट अज्यूम करते हैं. बेस एरिया चाहिए होगा हमें, आपको ऑलरेडी पता है फ्लक्स निकालने के लिए, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है. सो द बेस एरिया ऑफ सिलेंडर A is equals to pi r square. Pi is 3.14. R is given 5 in centimeter, that is 5 into 10 to the power minus 2 in meter its square.
दिस इज 3.14 into 25 into 10 power minus 4 78.50 10 power 4 ये वैल्यू हमारे पास में है, या फिर हम इसको लिखेंगे 7.85 into 10 power minus 3 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है लेस देन के लिए, ये निगेटिव है, तो ई फ्लक्स इक्वल्स टू द फ्लक्स थ्रू लेफ्ट बेस फाई एल से अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें कितना होगा। देखिए इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही गिवन है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है एक्स इज लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। तो यह क्या वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 एंड एरिया इज 7.85 10 power minus 3 एंड cos 0। यहाँ एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों, एरिया वेक्टर तो आउटवर्ड हो गई होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही गिवन है, नेगेटिव वैल्यू है ना लेस देन 0 के लिए, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में। ये दोनों 0 पॉइंट से अगर रिड्यूस कर देते हैं तो into 10 power minus 3 that is 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैल्यू लेफ्ट साइड की हो गई। ऐसे ही हमें राइट के लिए कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से देखते हैं, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 फाई आर ई ए कॉस 0 ई की वैल्यू तो वही है, बस यहाँ नेगेटिव भी बनती है, वहाँ पॉजिटिव है, तो सेम वैल्यू होगी। 200 एरिया भी वही है, बेस एरिया भी सेम होगा, दिस 7.85 into 10 power minus 3 और cos 0 की वैल्यू 1, इट मीन्स द सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी रिजल्ट भी सेम आएगा, दिस इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ईच साइड से पूछा था, तो ए पार्ट हमने कैलकुलेट किया है। बी पार्ट में क्वेश्चन के क्या कह रहे हैं, बी पार्ट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की साइड से फ्लक्स क्या होगा। ए पार्ट में फाई एल लेफ्ट साइड बेस चाहिए, राइट साइड बेस चाहिए, और बी पार्ट फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, तो फाई सी से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, साइड का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये तो लेंथ क्या नाम हो गया, साइड ये हो गई। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, या तो इधर है या फिर इधर है, और यहाँ साइड पे जब लेंगे तो एरिया वेक्टर इधर होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ई ए cos 90 बिकॉज cos 90 इज 0, द सेकंड आंसर इज 0, बी पार्ट वाला 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन में सी पार्ट भी है। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स फाई ई, इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का, फिर साइड का, 3 एरिया होते हैं सिलेंडर में, पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, तीनों ऐड कर देंगे। तो फाई एल है 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0, 1.57 फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, 1.57 फॉर द राइट हैंड साइड, एंड 0 फॉर द साइड मीन्स कर्व सरफेस एरिया। द टोटल इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb. This is the C part, and the question also has the D part. So in the D part, what is the net charge? Net charge. तो net charge क्या होता है, phi net flux into the epsilon naught. Net flux कितना है 3.14, epsilon naught कितना होता है 8.85 into 10 to the power minus 12.
इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 एंड 8.85। This is 27.78 into 10 to the power minus 12 or 2.78 into 10 to the power minus 11 coulomb. This should be the answer. Now the next and last question, the 10th question is, इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन है द 4 पार्ट ए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इन द बी पार्ट फ्लक्स थ्रू द साइड मींस कर्व सरफेस एरिया, फिर सी पार्ट द नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर एंड डी पार्ट व्हाट इज द नेट चार्ज इनक्लोज। Now the next and last, a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb. Question 10, Q is 2 into 10 to the power minus 9 coulomb is given. If placed on a corner of a cube of side 1 meter, side of cube is 1 meter as shown in figure. Find the electric flux passing through the cube, find the flux passing through the one face of the cube. दो पार्ट है, पहले क्यूब से निकालना है फिर उसके एक फेस से निकालना है। 1 सेंटीमीटर साइड गिवन है। वन सेंटीमीटर साइड गिवन है, तो ये क्यूब गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑफ साइड का, और इसके कॉर्नर पे यहाँ ये चार्ज रखा है। तो आपको पता है गॉस थ्योरम तब तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि इस चार्ज को इंक्लोज ना किया जाए। और इस चार्ज को किस तरीके से इंक्लोज करें कि ये किसी सरफेस के सेंटर पे आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से। हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है, इसके बराबर में 3 क्यूब ऐसे ही रख दिए हैं और ऐसे रख दिए। इस तरीके से रख दिया जाए तो ये वाला जो क्यूब है ये चार्ज यहाँ आ गया, मतलब इसके बराबर में इसके बैक में मीन्स हमें जो गॉसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा वो एक ऐसा क्यूब बनाना पड़ेगा जो कि ये चार्ज सेंटर पे आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, टू कैलकुलेट द फ्लक्स through the cube, we have to draw a Gaussian cube such as the charge V at center of cube। हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि जो कॉर्नर पर चार्ज दिया है ये उस ट्यूब के सेंटर पे आया जो हम नया ड्रॉ करेंगे। और नया जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें किस तरीके का कुछ शेप मिलेगा, इसके बराबर में एक क्यूब रखें इसी शेप का, एक इसके तो इसके पीछे रखें और 4 इसके ऊपर रखें, मीन्स ओवरऑल ये 8 क्यूब हो इसी तरीके के। इमेजिन करके देखिए
8 क्यूब। तो जब 8 क्यूब होंगे तो जैसे ये शो किया है मैंने 1 2 3 4 आपको ये दिख रहा है, ऐसे ये नीचे सरफेस है 1 2 3 4, तो ये कॉर्नर वाला जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो एक बड़े वाले गॉसियन सरफेस का निकालेंगे और ये क्यूब जो गिवन क्यूब है वो कितना है 1/8 टाइम्स है उसका, तो इससे कितना हो जाएगा टोटल का 1/8 टाइम्स हो जाएगा क्यूब। द फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब is equals to flux through the Gaussian cube divided by 8, ये होना चाहिए। जो गॉसियन क्यूब हमने डिफाइन किया है वो इसका 8 टाइम्स है, तब ये जो कॉर्नर पे चार्ज गिवन है वो सेंटर पे आ गया, तो उसका कैलकुलेट करके 8 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। तो क्या होना चाहिए Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। Q is given 2 into 10 to the power minus 9, 8 into 8.85 into 10 to the power minus 12। और इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके 28.2 इंटू 10 to the power 12 आ जाएगी। देखते हैं, इस पूरे को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी 28.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये वैल्यू है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे क्लियरली दिख रहा है। और ऐसे ही इसका ये जो इसका एक पार्ट था, एक बी पार्ट में क्या करें क्वेश्चन के फाइंड द अब वन फेस से भी कैलकुलेट करना है। तो इसका वन फेस कितना है, सिर्फ इतना बना है, ये जो मैं शेडेड एरिया दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है अगर हम इसको ए बी सी डी एज्यूम करते तो ये इसका बेस है ए बी सी डी। तो इसका मतलब टोटल क्यूब का जो हम निकाल के लाए हैं, इस टोटल क्यूब का में भी 6 सरफेस होंगे और इसका जो बेस होगा बड़े वाले गॉसियन सरफेस का बेस का निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/6 टाइम से डिवाइड कर देते हैं। और जो एक्चुअल क्यूब है उसका बेस कितना है, यहाँ पे 4 क्यूब नीचे लगे हुए हैं, तो 4 क्यूब का मतलब जो एक्चुअल क्यूब है उसका बेस इस गॉसियन सरफेस के बेस का 1/4 है। तो पहले हमने गॉसियन सरफेस का निकाल लिया, गॉसियन सरफेस के जब हम एक सरफेस का निकालेंगे तो 1/6 टाइम होगा, और वो बेस एक्चुअल क्यूब का बेस कितना है, बेस का 1/4 टाइम्स है। तो इट शुड बी द फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ गिवन क्यूब Q upon epsilon naught divided by 6 for the base of Gaussian and divided by 4. This is Q upon 24 epsilon naught. ये ध्यान भी रखिएगा, अगर किसी क्यूब के कॉर्नर पे कोई चार्ज गिवन है तो उस क्यूब का फ्लक्स 1/8 टाइम्स ऑफ द नेट फ्लक्स होगा गॉसियन क्यूब का। और अगर मीन्स हमने क्या किया है, चार्ज को 1/8 टाइम कर लिया, और अगर उसके बेस या किसी एक फेस से चाहिए तो 1/24 टाइम्स होगा। ये कॉन्सेप्ट भी है। तो नाउ phi e is equals to 2 into 10 to the power minus 9 divided by 24 into 8.85 into 10 to the power minus 12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज 12, 1 divided by 12 into 8.85 into 10 to the power 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, और इसको सॉल्व आउट करने पे हमें 9.42 वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज 9.42 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। So the first answer is this 28.25 Newton meter square per coulomb, and the second answer is 9.42 Newton meter square per coulomb. This is the 10th and last question for today. So you can again note down it by watching the screen, and the class is ending now, and we will meet again in the next class.